Hello friends, how are you? We have discussed yesterday some topics. Now we come to the next topic. But before starting the next topic, subscribe my YouTube channel, like, share and press the bell icon to see the first video. Now let us come to the next topic is Coulomb's law in vector form. वेक्टर फॉर्म में हम किस तरीके से कूलम्स लॉ को दिखा सकते हैं? Our purpose is only to show it follows Newton's third law of motion. See here, देखिए यहाँ पर we have taken the 2 points A and B containing charge Q1 and Q2 respectively. The separation between them is small r. Force is a vector quantity. It is a mutual phenomena. तो क्या होगा कि इसके अंदर एक चार्ज दूसरे पर फोर्स लगाएगा, दूसरा चार्ज पहले फोर्स लगाएगा. See here, F12. F12 means force on first due to second. F21 means force on second due to first. यहां आप देखिए, we have taken R21. R21 means position vector of second charge with respect to first. R12 means position vector of second charge with respect to first charge. जिसको respect लिया जाता है, it means it is taken as origin. Now, the force on first charge Q1 due to Q2. F12. Force on first due to second. 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square. That's the vector quantity. Then we have taken R12. This is the position vector. यहां हम पोजीशन वेक्टर लेंगे. साथ में इसको अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्शन शो कराने के लिए हम क्या लेंगे, इसके अंदर एक यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं R12. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 F21 is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square R21 vector. Moreover, the separation between A and B or B and A are same because they are at a constant distance small r, but the direction of position vector R12 and R21 are in opposite direction. तो दोनों opposite में है, तो क्या लिख सकते हैं, R12 is reverse of R21. इसको सेकंड इक्वेशन कंसीडर करिए. इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको पहली इक्वेशन से जब हम लेके चलेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो क्या आएगा, F12 is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square. इसके लिए क्या आएगा भाई, आपका माइनस में रखेंगे माइनस R21 माइनस 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square R21. अब ये वैल्यू किसकी हुई, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन देखिए, सेकेंड इक्वेशन से हमें पता लगेगा जो ये वैल्यू हमें दे रखी है, दिस इज द वैल्यू ऑफ F21 फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन
F12 इज इक्वल टू माइनस F21 और F12 प्लस F21 इज इक्वल टू 0. It means the net amount of the force on a charge system containing the two charges kept at a constant distance is 0. This is the equilibrium state. Coulomb's law के limitations क्या हैं? Coulomb's law की limitations हैं कि single point पर single charge होना चाहिए. That means it contains the point charge. Okay. The separation between both of the charges should not change. Constant होना चाहिए. बिल्कुल constant है. Whole system vary कर सकता है, लेकिन ये आपका separation vary नहीं करेगी. तो सबसे पहली लिमिटेशन ये है. एयर और वैक्यूम में फोर्स अप्लाई हो जाएगी, अदर मीडियम में हो जाएगी. अदर मीडियम में होगी तो लगने वाली जो फोर्स होगी वो एयर के कंपैरिजन में बाय द फैक्टर के रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो यहां हम क्या कह सकते हैं? बाय दिस ऑब्जर्वेशन वी फॉलो दैट follows Newton's third law of motion. इसने थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिस्क्राइब किया, इसलिए नेट अमाउंट ऑफ चार्ज नेट अमाउंट ऑफ फोर्स इस सिस्टम के ऊपर 0 है. दिस इज द इक्विलिब्रियम स्टेट. राइट डाउन एंड नोट डाउन. Our second topic is force between multiple charges, superposition principle. Superposition principle, where act, what need. See here, force between multiple charges. हालांकि जो कूलम्स लॉ है वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो फोर्स लगेगी, कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली बिटवीन 2 पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस. लेकिन हियर इज द सिस्टम कंटेनिंग नंबर ऑफ इंटरैक्टिंग चार्जेस. देखिए Q नॉट है, इसके सराउंडिंग में नंबर ऑफ n चार्जेस हैं. दिस इज कॉल्ड Q1, Q2, Q3 एंड Qn सेपरेटेड बाय इंडिविजुअली R1, R2, R3, Rn डिस्टेंस. तो हम क्या करते हैं कि हमें फोर्स निकालनी है आइदर चार्ज पर. किसी एक चार्ज पर फोर्स निकालनी है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस. देयर इज नो डायरेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द होल अमाउंट ऑफ नेट अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन दैट चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस. तो कैसे करें? आपको पता है, you always know that the force is a vector quantity. See here, हम क्या कहते हैं कि if the system containing the number of interacting charges, then vector sum you can see here the net amount of force on any one charge मतलब किसी भी any one charge is the vector sum of all individual forces acting on it by that charges. सीधी सी बात हम कह सकते हैं, किसी एक चार्ज पर अगर सिस्टम नंबर ऑफ चार्जेस कंटेन करे हुए है तो उसमें क्या होगा कि किसी भी एक चार्ज पर लगने वाली नेट अमाउंट ऑफ फोर्स
जितने चार्जेस हैं वो इंडिविजुअली जितने फोर्सेस इसके ऊपर लगाते हैं उनके वेक्टर सम के इक्वल होता है। लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिए, कुछ पॉइंट्स आपके, कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट्स आपको यहीं मिलेंगे और किस कंडीशन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ कैन यू यूज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन टू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल्स ऑफ एनसीईआरटी और द प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम other refresher book. See here, if the system containing number of interacting charges, then net force on any charge is the vector sum of all individual forces acting on it due to the other charges. But the individual forces between the two charges is unaffected due to the presence of other charge. Means इन दोनों के बीच जो लगने वाली फोर्स है वो अदर चार्जेस जो यहां रखे हुए हैं उनकी वजह से अफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि जो दो चार्जेस के बीच फोर्स लगती है इट डिपेंड्स ओनली ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द बोथ ऑफ द चार्जेस एंड द सेपरेशन बिटवीन देम, उससे ज्यादा नहीं है। तो हाउ कैन वी राइट हियर नेट अमाउंट ऑफ फोर्स एफ नॉट, इस पर आपका F1 FO1 प्लस FO2 डॉट डॉट FON, इस तरीके से निकालेंगे। कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हम नहीं दे सकते उसके अंदर, तो कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए इनिशियली जितने भी चार्जेस आपके पास होंगे सबसे पहले दो दो चार्जेस के बीच में आप फोर्स कैलकुलेट करेंगे, देन आप जो है इसका वेक्टर सम करेंगे। वेक्टर सम करने का क्या तरीका है? You have learned in 11th class there are the two principles of adding the two vectors. First one is triangle method, second one is parallelogram method. तो इन दोनों में करेंगे, but in both of the methods we use only the two vectors. तो दो वेक्टर्स का हम यूज करेंगे। तो हम let us see an example relating to the principle of superposition. See here.